Hello student, welcome back to this channel. Have you ever noticed how a swing in a playground moves back and forth again and again? Actually, that motion is actually connected to an important concept in physics called simple pendulum. Today we are discussing about pendulum, or we can say simple pendulum. Before starting this lecture, we want to explore this topic into your daily life example. Okay, first introduction. Student, many of you may think, why are we studying a simple pendulum? Because because this small chapter teaches some of the biggest idea of physics. Actually, why do we study simple pendulum? If someone asks you, why do we study this topic in physics in chapter measurement and quantities? So you will simply say that before saying this explanation to someone, first you have to visualize on yourself. Getting first, I'm saying you these words which help you to understand deeply. Okay, because this small chapter teaches some of the biggest idea of physics. By studying a pendulum, okay, we understand motion, time, oscillations, frequency, gravity, and measurement of time. The simple pendulum is one of the easiest way to understand how motion happen, okay, or how motion reflects in nature. Getting my point? So remember, we study the simple pendulum not because it swings, but because it teaches the science of time and motions. मतलब क्या हो रहा है, छोटा सा स्विंग लेकिन उसके अंदर बहुत सारा फिजिक्स छुपा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि ये मोशन के साथ, मतलब टाइम के साथ किस तरह से मोशन करता है, मतलब वो टाइम के साथ जो चेंज होता है उसका पोजीशन पे, वो किस तरह से नेचर के साथ रिलेट करता है। इसीलिए हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक हम लोग पहले क्या सोचते थे कि सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं है, ये एक क्लॉक पेंडुलम है जो आपका वॉल क्लॉक में लगा हुआ रहता है, जो एक मोशंस को वो रिपीट करता है। टू आगे और जाता है, फ्रो पीछे की ओर जाता है, फिर वो मीन पोजीशन पे आता है, फिर टू आगे की ओर जाता है और फ्रो यानी कि बैकवर्ड जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है। ये हम लोग सिंपली क्लॉक पेंडुलम समझते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली जो है मोशंस के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग स्टडी करते क्यों है? क्योंकि इससे हमको एक्यूरेटली किसी भी, मतलब किसी भी टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वांट टू शो यू ऑल द स्लाइड विच आई डिस्कस लेटर। गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक included today's lecture. Okay, first, what is simple pendulum or clock pendulum diagram, and the second, definition of simple pendulum and simple diagram given the knowledge of basically the term uses in simple pendulum. उसके बाद real life example, parts of simple pendulum, next slide, and we will discuss the fixed support, sting bob, mean position and extreme position. Oscillation I will discuss. Frequency, it is a very important topic. Relation between frequency and temperature is also a very important topic, including this. And amplitude. Getting my point? One of the most important formula in a time period equal to 2 pi root over L by G. I will discuss. And the important things which are second pendulum, which are given in your textbook Selena publication. I will discuss about this and uses of second pendulum, and the chapter will end after that point. Okay, then first I will start with the first slide. I want to show you just a figure of simple pendulum or using of simple pendulum as a clock pendulum. Okay, getting my point? Which type of motion? To and fro of motion we are seeing this. Okay, don't worry, I will explain everything in a very easy and exam oriented way with diagram and example. Okay, what are we learn today? Today we are going to learn what a simple pendulum is, oscillation and time period, laws of pendulum, factor affecting its motions, and the important formula used in ICSE class 9 physics. Okay, now starting this lecture. Now first we have seen the figure, and the second, what is simple pendulum. If someone asks you what is a simple pendulum, so you will definitely you will say that in a easily way, a simple pendulum consists of a small heavy bob suspended by a light inextensible string from a fixed point. What I am saying to you, a simple pendulum किससे बना होता है? एक small heavy, मतलब क्या बोल रहे हो? First I will select a pen.
What I'm saying to you, a simple pendulum consists of small heavy bob. This is called bob. Okay, small heavy bob suspended by a light inextensible string. Inextensible string means this is a strings where it is टाइट हियर. ओके, दैट मीन्स क्या हुआ, ये आपका बॉब होता है जो आपका क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है और हाई आपका स्मॉल होता है. ठीक है, स्मॉल हैवी बॉब होता है. बाय लाइट एक्सटेंसिबिलिटी फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ फिक्स पॉइंट. ओके, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ लेंथ ऑफ स्टिंग्स. ओके, and this when this object is suspended freely in mean position, that means it is rest, it is in mean position. ठीक है, जब ये रेस्ट में रहेगा वो किस पोजीशन पे रहेगा, मीन पोजीशन पे रहेगा. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. और आपका इसका यूज़ क्या होता है रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे प्लेग्राउंड स्विंग में, जैसे आप लोग ग्राउंड राउंड जाएंगे तो स्विंग जो होता है आपका टू एंड फ्रो, आगे और बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो मूव करता है वो उसका एग्जांपल है. ये भी किसका एग्जांपल है, सिंपल पेंडुलम, मतलब इस प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है, वॉल क्लॉक पेंडुलम ये तो हम लोग देख लिए. ठीक है, और टेम्पल वेल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, और मेट्रोनोम मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, एक आपका फिर स्मॉल हैवी बॉब है, इसको बॉब बोला जाता है. ठीक है, ये स्टिंग्स है आपका, ये मीन पोजीशन है. फिर आप बताएंगे बाद में आपको कि एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है दोनों. ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे. फिर थर्ड स्लाइड में देख लिया हम लोग, पहला सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन देख लिए. पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी बॉब सस्पेंडेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट किसको बोलता है, इसको सपोर्टेड बॉडी या फिक्स पॉइंट. ठीक है, ना गेट गोइंग टू ए नेक्स्ट स्लाइड. पार्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में पार्ट्स में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो क्या है एक फिक्स सपोर्ट हम लोग देख लिए, जहाँ से वो आपका स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब टाइटली मतलब बंधा होता है. ठीक है, स्ट्रिंग वो जो बंधा हुआ है चीज़ वो स्ट्रिंग. बॉब जो स्मॉल हैवी. ठीक है, मीन पोजीशन जहाँ वो रेस्ट पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ से वो मूव करता है और जहाँ तक वो ट्रैवल करता है. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट. तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द एनाटोमी ऑफ पेंडुलम. द टॉप फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सपोर्ट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप फिक्स पॉइंट. ओके, इज कॉल्ड द सपोर्ट. इसको क्या बोलते हैं, टॉप फिक्स पॉइंट. एंड द थ्रेड इज द स्ट्रिंग. ये थ्रेड होता है, ये क्या होता है, थ्रेड. क्या होता है, थ्रेड. ठीक है, ये थ्रेड होता है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो. ये क्या होता है आपका, थ्रेड होता है. ठीक है, दिस इज ए थ्रेड और स्ट्रिंग. ओके, द हैवी ऑब्जेक्ट इज द बॉब. ये हैवी ऑब्जेक्ट क्या होता है, बॉब होता है. ठीक है, द सेंटर रेस्टिंग पोजीशन, ये किस पोजीशन पे रहता है, सेंट्रल रेस्टिंग पोजीशन पे या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. एंड द फर्देस्ट पॉइंट रिचेस ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन. क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है. ये मैक्सिमम पॉइंट इधर भी, मतलब ये क्या करता है, बॉब क्या होता है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट भी करता है और बैकवर्ड मूवमेंट भी करता है. ठीक है, जो ये जितना दूर ये जा सकता है उसी को उसका मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग देख ले फिक्स सपोर्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोले, टॉप फिक्स पॉइंट. ठीक है, टॉप फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सपोर्ट. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड बॉब, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज ए मैक्सिमम पॉइंट बिकॉज द बॉब इज गोइंग टूवर्ड्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. ठीक है, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स गोइंग टू ए एक्सट्रीम मीन पोजिशन, एक्सट्रीम पॉइंट. ठीक है, एक्सट्रीम पोजिशन आई विल डिस्कस, मीन पोजिशन वी डिस्कस, बॉब डिस्कस, स्ट्रिंग डिस्कस, फिक्स सपोर्ट we have discussed already. And what do you mean by oscillation? First we will talking about the properties of simple pendulum. So oscillations means what, one complete to and fro motion is called one oscillation. What I'm saying to you, one complete to and fro motion is called one oscillation. One oscillation means nothing but a very simple, I'm taking again this figure, this is called bob. Okay, I'm what I'm saying to you, what is oscillation. ठीक, what I'm saying to you, one complete to and fro motion is called oscillation. Means what I am saying you, that this is a bob to and come back to its original position. What I'm taking, this goes and come back to a original position, also goes either side and come back to a in mean position. It's called oscillation. That means what I'm saying you, one complete oscillation means what I'm saying, sorry, when the bob is moving from its mean position to a either side of the extreme position and come back to an original position is called oscillation. Okay, what I'm writing, what I have written here, one complete to and fro motion, that means oscillation is one complete to and fro motion is called one oscillation. Okay, मतलब one complete motions of to and fro is called oscillation. ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक बार जो बॉब एक
आइदर मतलब अपने फिक्स पोजीशन से टू एंड कम बैक एंड फोर एंड अपना जो फिक्स पोजीशन पे आ रहा है उसी को हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम आइदर साइड, ओके। When the bob moves from one side to the other and come back to again, that complete one oscillation. Why I'm saying, what I'm saying to you, when the body moves from one side to other, ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, एक साइड से अदर साइड में जा रहा है और कम बैक उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन, ठीक है। थिंक इट लाइक ए फुल डांस मूव, जैसे हम लोग डांस एक मतलब एक कंप्लीट डांस को कंप्लीट किया जाता है, स्टार्ट मूव एंड रिटर्न, दैट्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ओके। अब I'm going to a next topic, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है वो होता है उसका टाइम पीरियड, ओके। उसका सिंबल क्या होता है, टी, और इसका हमको पता है इंटरनेशनल यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ओके। इफ़ वन ऑसिलेशन टेक 2 सेकेंड देन टाइम पीरियड, अगर वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको 2 सेकेंड लग रहा है तो उसका कितना टाइम पीरियड, 2 सेकेंड। सिंपल एंड पावरफुल, ये बहुत ईजी है, ठीक है, कि अगर ऑसिलेशन करने में 2 सेकंड लग रहा है एक ऑसिलेशन करने में, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड होगा, ठीक है। जैसे हम लोग समझ ऑसिलेशन समझ गए कि एक चक्कर वो पूरा कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन वो कर रहा है, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन करने में जो जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ओके, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। गेटिंग माई पॉइंट? एंड मूविंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज अ वेरी इजी वर्ड और वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट, 1 सेकेंड में वो कितना ऑसिलेशन करता है, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ सिंपल डायग्राम। फर्स्ट आई रेज ऑल दिस, ये एक बॉब है, ये मूव कर रहा है, फिर आया, फिर गया, फिर आया, मतलब ये 1 सेकंड में कितना बार गया और कितना बार आया, यही होता है उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितना उस मतलब कितना वो ऑसिलेशन कर पा रहा है पर सेकंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, सिंपल इसका क्या होता है, सिंबल एफ होता है, हर्ट्ज होता है। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या होता है आपका, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर टाइम। इसको अगर डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन को टाइम से, तो हम लोग 1 सेकंड में हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि इसका कितना फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकंड में कितना उसका ऑसिलेशन हो रहा है, वही उसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग नोट में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फास्ट द पेंडुलम ऑसिलेट, मतलब कितना तेज पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। मोर ऑसिलेशन, मोर ऑसिलेशंस इन लेस टाइम मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या कम टाइम लग रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन करने में कम टाइम लग रहा है तो हायर फ्रीक्वेंसी और पेंडुलम। और अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल ज़्यादा टाइम लग रहा तो कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब कम समय लग रहा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा समय लग रहा तो कम फ्रीक्वेंसी, और कम समय लग रहा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देख रहे मोर ऑसिलेशन इन लेस टाइम, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कम समय में तो उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब ज़्यादा ऑसिलेशन है लेस टाइम में तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर ऑसिलेशन कम है ज़्यादा टाइम में तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। इफ़ ए पेंडुलम कंप्लीट 5 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड द फ्रीक्वेंसी 5, मतलब 1 सेकंड में उसका 5 ऑसिलेशन हो रहा तो उसका कितना है आपका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। मतलब क्या बता रहे हैं, ऑसिलेशन अगर 5 है 1 सेकंड में तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 5 होगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो आपको पता है हर्ट्ज होता है, ठीक है, क्या होता है, हर्ट्ज। इसको इस तरह से दिखाते हैं, हर्ट्ज, ठीक है, ये इस तरह से दिखाया जाता है इसका सिंबल को, ठीक है, इस तरह से हर्ट्ज होता है। तो हम लोग देख लिए कि मोर ऑसिलेशन इन लेस टाइम मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, और उसी का वाइस वर्सा, अगर लेस ऑसिलेशन इन हाई टाइम मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी, ओके। इफ ए पेंडुलम कंप्लीट 5 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। गेटिंग माई पॉइंट? एंड मूव टू ए नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी टाइम। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में, तो दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है। कैसे, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो टाइम क्या है, कम लगेगा, मतलब अगर उसका ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहा है तो टाइम पीरियड कम लग रहा है पर सेकंड में, तो इन दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेयर एफ क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है, टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। इफ टाइम पीरियड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इफ टाइम पीरियड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फर्स्ट ऑसिलेशन मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, ओके। नोट, वन ऑसिलेशन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं,
ठीक है। वन ऑसिलेशन टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, और ऑसिलेशन पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, वन ऑसिलेशन टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं और ऑसिलेशन पर सेकंड को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड, बता दिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। इट इफ टाइम पीरियड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, स्लो स्विंग मीन फ्यूअर ऑसिलेशन, फास्ट स्विंग मीन मोर ऑसिलेशन। ठीक है, जितना ज़्यादा मूव करेगा स्पीड से उसका उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑसिलेशन उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या होता है, रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, मूविंग टू ए नेक्स्ट स्लाइड। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट ये है बॉब है, तो ये कितना दूर जा सकता है, ये इसका क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है। ये इधर बाइदर साइड कितना दूर जा सकता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सस्पेंडेड किया गया। ठीक है, तो ये जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये बताता है आपका क्या, क्या बताता है आपका, एम्पलीट्यूड। क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन। इसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको भी क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, हाउ फार डज द पेंडुलम मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो कितना आगे मूव कर पा रहा है, कितना दूर जा पा रहा है। दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन्स वाइडर स्विंग, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना वाइडर स्विंग है। वाइडर मतलब उतना ये वाइड जाएगा, वाइड शो। आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए ये, सॉरी इसको मिटा देते हैं, एक जा रहा है इतना दूर और एक जा रहा है इतना दूर, और वही चीज़ अगर एक जा रहा है इतना दूर, एक जा रहा है इतना, तो कौन वाला ज़्यादा वाइड हो रहा है, ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से अपने मीन पोजीशन से। ठीक है, मीन पोजीशन से, वही चीज़ बता रहे हैं। Getting my point? So wider swing, smaller amplitude means shorter wings. But remember, for small oscillation, the time period remains also almost constant. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Smaller amplitude means shorter swing. Smaller amplitude होगा तो shorter swings होगा. But remember, for small oscillation में क्या होगा आपका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। टाइम पीरियड इस पर डिपेंड नहीं करता है, जो मूवमेंट होता है ना उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। मतलब वो क्या बता रहे हैं, अगर ये ज़्यादा वाइड हो रहा तो टाइम पीरियड यहाँ भी कांस्टेंट है, अगर कम हो रहा यहाँ भी हो रहा तो टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, वही बता रहे हैं, यहाँ भी टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा और यहाँ भी टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्लाइड मूव ऑन करते हैं। क्या बता रहे हैं, दिस इज द फेमस फार्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम हियर टी टाइम पीरियड। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको कैसे आता है ये आप लोग क्लास 11 और 12 में समझेंगे, हायर क्लास में समझेंगे। टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, इसको आपको याद रखना होगा। टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, पाई फाई होता है, लेंथ पेंडुलम का लेंथ होता है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। द टाइम पीरियड डिपेंड्स मेनली ऑन दिस, तो टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड ये किस पे डिपेंड करता है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग क्या देखते हैं इस इक्वेशन से, लॉन्गर पेंडुलम मोर टाइम पीरियड। अगर लंबा पेंडुलम होगा तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, शॉर्टर पेंडुलम होगा तो लेस टाइम पीरियड होगा। मास ऑफ बॉब डज नॉट, मतलब इसका जो मास, बॉब का जो मास होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्या चीज़ डिपेंड नहीं करता है, उसका टाइम पीरियड। ठीक है, नोट हियर द बिगेस्ट सरप्राइज, वेदर द बॉब इज हैवी और लाइट द टाइम पीरियड रिमेंस ऑलमोस्ट द सेम। मतलब क्या, बॉब जितना भी बड़ा हो, छोटा हो, मास हैवी हो, वो टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता, मतलब टाइम पीरियड रिमेंस ऑलमोस्ट द सेम। यस, मास डज नॉट मैटर, ओनली द लेंथ प्ले द मेजर रोल। ओनली क्या डिपेंड करता है, लेंथ मेजर करता है, लेंथ और ग्रेविटी। ठीक है, लेंथ और ग्रेविटी मेजर रोल। लॉन्गर पेंडुलम स्विंग स्लोली, शॉर्टर पेंडुलम स्विंग्स फास्टर, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और जी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेविटी, एम्पलीट्यूड पे कोई डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अब सेकंड पेंडुलम, ये आप लोग का बुक में दिया हुआ एक नया मतलब दिया हुआ है सेकंड पेंडुलम के बारे में। तो सेकंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, मतलब जिसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है 2 सेकंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। तो आपको याद रखें, सेकंड से सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तो जिसका टाइम पीरियड 2 हो, सेकंड हो, मतलब 2 सेकंड हो, जिसका टाइम पीरियड क्या हो, 2 सेकंड हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेकंड पेंडुलम। ठीक है, दैट मीन्स 1 सेकंड टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर, 1 सेकंड टू कम, मतलब 1 सेकंड जाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट एंड कम्स बैक टू अदर साइड एंड कम टू ए ओरिजिनल पॉइंट takes another second. That means what I am saying to you, it takes only 2 seconds to complete one oscillation. Getting my point? This is called second pendulum. Okay, so total time of one complete oscillation is 2 seconds. Okay, मतलब जिस पेंडुलम का 2 सेकंड लगता है ऑसिलेशन करने में, उसका वो क्या होता है, सेकंड पेंडुलम होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम का यूज कहाँ होता है, द सेकंड पेंडुलम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेजर टाइम वेरी एक्यूरेटली। ये क्या करता है, मतलब ये टाइम को वेरी एक्यूरेटली मेजर करता है। ये आपको पूछा जाता है कि सेकंड पेंडुलम का यूज़ कहाँ होता है, तो
ये क्या बताता है, टाइम को वेरी एक्यूरेटली बताता है। क्यों? क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है। पेंडुलम क्लॉक में इसका यूज होता है, कहाँ यूज होता है? पेंडुलम क्लॉक में। टाइम मेजरमेंट इन साइंस में होता है, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। तो ये सब भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। नोट, बिफोर डिजिटल क्लॉक एग्जिस्ट, जब डिजिटल क्लॉक एग्जिस्ट से पहले द सेकंड पेंडुलम वाज द हार्ट बीट ऑफ एक्यूरेट टाइम टेकिंग, मतलब सेकंड पेंडुलम का ही यूज किया जाता था आपका डिजिटल क्लॉक का इन्वेंशन से पहले। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट था अर्लियर टाइम पीरियड में, आप समझ सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये इसके बाद ये आपका लेक्चर हमको लग रहा है एंड हो गया। एक क्वाट है, द पेंडुलम प्रूव्स दैट इवन सिंपल मोशन कैन कंट्रोल टाइम। समझ रहे हैं आप, टू एंड फ्रो मोशन टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ये जो चैप्टर है हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए। हम लोग क्या क्या देख लिए इसके बारे में। पहला हम लोग एक सिंपल क्लॉक देखें जो पेंडुलम बेस पर यूज़ होता है। सेकंड उसका डेफिनेशन देखें, रियल लाइफ एग्जांपल देखें। उसके बाद पार्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम देखें। उसके बाद ऑसिलेशन को डिफाइन किए। फिर टाइम पीरियड देखें, फ्रीक्वेंसी देखें। फिर रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड को देखें। फिर एम्पलीट्यूड को देखें। फिर उसके बाद हम लोग एक फार्मूला देखें, T=2π√L/g, जहाँ पर टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड नहीं करता? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, और मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फिर लॉन्गर पेंडुलम मोर टाइम, शॉर्टर पेंडुलम लेस टाइम। ये टाइम पीरियड के साथ लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है यहाँ से। टाइम और लेंथ के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, ठीक है। मास ऑफ द वर्ड डज नॉट इफेक्ट बता दी, ये भी डिस्कस कर लिए। उसका सेकंड पेंडुलम भी दिया हुआ था बुक में, डिस्कस कर लिए, सारा चीज़ हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।